اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے پڑھا کہ ان کی گردنیں مارو اور ان کی خون کئی لڑائیاں جو ہے وہ آ سکتی ہیں۔ جیسے جو وار مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان شروع ہوئی تھی وہ جو ہے وہ تقریباً 6-8 سال آپ کی ہجرت سے شروع ہوئی۔ پہلے بدر ہوا، پھر احد ہوا، پھر جو ہے وہ احزاب ہوا، اس طرح اور غزوے کتنے ہوئے، اور اختتام کب ہوا اس کا؟ اختتام ہوا جس وقت جو ہے وہ مکہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمان ایک قوت جو ہے وہ بن گیا۔ اس کے بعد بھی غزوات ہوئے کوئی، تو یہ بیٹلز تھیں جبکہ وار ایک تھی۔ تو کہا گیا کہ اگر تم ان کو ہم نے پڑھا تھا کہ ایک شخص جو آیا تیسرا اور آگے اس نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے مارا اس کو، تو انہوں نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یاد کیجئے، اور وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور وہ ان کی اصلاح کر دے گا اللہ ان کی حال کی۔ کہا جاتا ہے کہ شہید کے قرض کے علاوہ سارے گناہ معاف، سارے گناہ اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَيُدْخِلُهُمْ، اور وہ داخل کرے گا، وَيُدْخِلْهُمْ، اور داخل کرے گا ان کو الجنت، جنت میں، الرفہ، الرفہ لفظ کھولیں اس کو، لفظ کیا ہے؟ این رے فے، عرف نہیں ہم جس کو کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہچان کرا دینا۔ تعارف بھی لفظ اسی سے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اپنا تعارف کرائیے تو مادہ روٹ جو ہے وہ یہی اسی لفظ کا ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں عرف فلاں، مطلب یہ کہ نام تو اس کا سلیم ہے لیکن عرف اس کی پہچان جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے پہچان کرا دینا۔ اب لفظ اگر یہ لفظ جو ہے وہ ہوگا عرفہ تو اس کا مطلب ہے پہچاننا، اور اگر یہ عرفہ ہوگا تو اس کا معنی ہوتا ہے پہچان کروانا، کسی کی شناخت کروانا۔ ایک ہوتا ہے خود پہچاننا، ایک ہوتا ہے شناخت کروانا۔ اب ایک تو معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یدخلہ الجنت الرفہ، پہچان رکھتے ہوں گے وہ اس کی، پہچان رکھتے ہوں گے کہ وہ جانتے ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ وہ جنت میں ایسے ہوں گے، وہ ایسے جا کے اپنے مکان پہ ٹھہریں گے جیسے جو ہے وہ اپنے دنیاوی مکان سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اس کو، زیادہ جانتے ہوں گے کہ ہاں اچھا یہ میری جگہ ہے، یہ میرا مکان ہے۔ اور شہیدوں کے لیے تو کہا گیا کہ وہ تو اسی طرح جو ہے وہ اپنی بیویوں کو، حوروں کو، اور جو ہے وہ گھروں کو، اپنی جگہوں کو پہچانتے ہوں گے اس سے بہتر، اس سے زیادہ جتنا وہ دنیا میں پہچانتے ہیں۔ ایک تو اس کی یہ ہے۔ اب اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس جنت سے ان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ متعارف کرا دے گا، جس کا انیشل تعارف ہمیں بار بار قرآن میں فرمایا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تجری من تحت الانہار، وہ بہتی ہوں گی نہریں جن کے نیچے، اس میں جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے، تختوں پہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، جو وہ چاہیں گے وہ مانگیں گے۔ تو جس سے روشناس کرایا گیا ہے، جس کی پہچان ہے، وہ جنت ان کے لیے ہے۔ دوسری یہ کہ وہ وہاں پہ پہنچیں گے۔ اچھا، ایک عرفہ کے معنی ایک اور بھی ہوتا ہے، اس کا عرفہ کا معنی جو ہے وہ خوشبو بھی ہوتا ہے، اور الرفہ کا معنی جو ہے وہ خوشبو سے معطر کر دینا بھی ہوتا ہے، معطر کی ہوئی چیز۔ تو ایک مفہوم اس کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ وہ خوشبوؤں سے معطر جنتیں جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ مہیا کی جائیں گی، کہ جن میں جو ہے وہ خوشبو سے معطر کی ہوں گی۔ وَيُدْخِلْهُمْ، وہ داخل کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں، الرفہ لہم، پہچان ہوگی ان کو، ان کے پاس اس کی۔ اگر ہم سورہ یونس میں پڑھیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم، راہ دکھا دے گا رب ان کی، بے ایمانہم، بسبب کس کے؟ بسبب اس کے کہ جو انہوں نے ایمان لائے، جو وہ ایمان لائے تھے اس کے سبب سے ان کی راہ دکھا دے گا۔ کس طرف راہ دکھائے گا؟ تجری من تحت الانہار، تحتہم الانہار، وہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والی جنتوں میں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ان میں بنا دے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، ویدخلہم الجنت الرفہ لہم، اور وہ داخل کرے گا ان جنتوں میں ان کو جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، جن کی وہ شناخت رکھتے ہوں گے، جن کو جانتے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصر اللہ، اب اس میں سے لفظ کون سا ہے؟ نصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد۔ تا علامات مضارع لگی، واو لفظ جمع کے لیے لگا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اب یہ اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے؟
अपनी तखलीक को पहचानो, जिस काम के लिए तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है वो करो, अल्लाह पे पूरा भरोसा करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, अल्लाह के रसूल की अतात करो, अल्लाह के जो है वो रोजे आखिरत के कहने के ऊपर जो है वो ईमान रखो। यही अल्लाह की मदद है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की जो है वो जो कहा गया है उसको मानो। अतिउल्लाह हब्लुल्लाह हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी को पकड़े रखो, यही अल्लाह की मदद है। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे यंसुरुकुम, वो फिर तुम्हारी मदद करेगा। यंसुरुकुम, वो तुम्हारी मदद करेगा। व युसद्दित, और वो साबित कदम रखेगा। अक़दामकुम, तुम्हारे पांव डोलने नहीं देगा। फिर वो जब मदद करता है, जब अल्लाह के प्यारे रसूल के असहाब ने छड़ियां, लाठियां, सोटियां हाथ में पकड़ के बदर में उतरे, तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी मदद की, फरिश्ते अपनी तरफ से भेजे। ये मदद हमें नजर आती है, ये मदद हमें नजर आती है, बदर में नजर आती है। ये मदद हमें जो है वो गज़वा खंदक, गज़वा अहज़ाब में नजर आती है, गज़वा हुनैन में नजर आती है, हर जगह नजर आती है कि अगर तुम अल्लाह के लिए अपना तन मन धन वारने की जो है वो गारंटी करते हो, अल्लाह के लिए जो वो अपने नफ्स को जो है वो मार देते हो, अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए अपना आप जो है वो एब्जॉर्ब कर देते हो उसमें, तो अल्लाह तुम्हारे साथ खड़ा है। ये नहीं हो सकता कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला से इमदाद की तवक्को तो रखें, लेकिन जो है वो खुद हम नाफरमानियां भी करते रहें, हम हरामखोरियां भी करते रहें, मदद तो मांगे हम अल्लाह से, तकिया हमारा जो है वो काफरों के ऊपर हो। जो हमारा आजकल हाल है कि हम मांगते हैं, दुआएं तो मांगते हैं अल्लाह से, लेकिन हम कहते हैं कि अच्छा IMF ने पैसे ना दिए तो हम नहीं चल सकते, डिफॉल्ट कर देंगे। तकिया किस पे है? उन गोरों पे, उन काफरों के ऊपर, और मांगते हैं दुआएं हम अल्लाह से। तो जैसे जितनी मर्जी दुआएं मांगते हो, जैसे मैंने कल भी अर्ज किया था कि दुआएं तो उस वक्त जो है हरमैन शरीफैन में भी 71 में मांगी जा रही थी मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए, लेकिन तकिया 7वें बहरी बेड़े पे था। जब तकिया उधर हो और दुआएं उधर मांगी जाए तो फिर ऐसी दुआएं नहीं मांगी जाती। देखिए, दुआएं अल्लाह सुब्हाना ताला तभी कबूल करते हैं जब तुम उसके होके रह जाओगे। जब तुम उसके होके नहीं रह रहे, तुम जो है वो दूसरों की तरफ देखते हो, दूसरों के सामने दस्ते दराज करते हो, दूसरों को अपना आका, अपना मालिक जो है वो सब कुछ समझते हो, तो फिर अल्लाह कहता है जाओ फिर उन्हीं से ले लो जाके। तो अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। और जो सब्बित अक़दामकुम, और फिर तुम्हारे कदम जमाए रखेगा, फिर तुम्हें डोलने नहीं देगा। फिर ना बदर में डोलने दिए, ना बाकी डोलने दिए। फिर क्या हुआ कि वो जो काफिला एक शख्स से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से चला था, उस काफिले में फिर साथी मिलते गए, उसमें जो है वो साथी मिलते गए, और फिर वो एक काफिला, एक हजूम जो है एक बनता गया, एक जमात बनती गई, चली गई। सिद्दीक़ अकबर आए, उमर फारूक आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, उस्मान गनी है, बस फिर चल सो चल। फिर क्या हुआ? फिर एक नेशन, एक कौम, एक जो है वो वजूद में आ गई। तो अल्लाह मियां ने कदम उनके जो है वो जमाए रखे। क्यों? उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की जात पे था, उसके अलावा कहीं उनका भरोसा नहीं था। यही बात जो है वो सूरह हज में भी फरमाई गई है, व यंसुरुल्लाह, अल्लाह उसकी मदद करेगा, मन यंसुरुहु, जो उसकी मदद करता है। तो अगर हम अल्लाह की मदद, हम अपने अंदर अपने गिरबान में झांक के हम देख लें, हम खुद अपने जज खुद हैं, हमें खुद पता कि हम क्या कर रहे हैं। तो मदद जो अल्लाह की मदद करेगा, अल्लाह ने कहा मैं तो उसी के साथ खड़ा हूंगा। क्या हमारा तकिया, क्या हमारा भरोसा उसी पे है? हम 71 का सान्हा भूल के आज भी जो है वो फिर भी हम देखते हैं कि हमारी मईशत सारी सूदी, हमारा तकिया जो है वो उन काफरों के ऊपर, उनके बगैर हम जीने का तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे हुक्मरान उनकी आशीर्वाद के बाद जो है बगैर जो है वो यहाँ पे जो है वो हुक्मरानी नहीं कर सकते। ये कौन सी जमहूरियत है? किस तरह की चीजें हैं? हमारा तकिया तो है ही नहीं, हम तो कुरान को मानते नहीं है, तो फिर मदद अल्लाह से क्यों मांगते हैं? जिनसे मांगते हैं फिर उनसे मांगो जाके, उनसे ले लो फिर जाके। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि जो मेरी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूंगा। अब देख लीजिए क्या हम उसकी मदद करते हैं? दूसरों के लिए तो हम जो है वो नीचे जमीन पे लेटने को भी तैयार हैं, आंखें भी जो उनके सामने बिछाते हैं, सब कुछ करते हैं, नहीं लेटते, नहीं सजदा करते, तो अल्लाह को नहीं करते। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बड़ा क्लियरली कह दिया, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अगर अपने आप को डिप्यूट कर दोगे, वक्फ कर दोगे, अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए अपना तन मन धन लुटा दोगे, तो अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। हम खुद सोचें, इस दीन के कायम करने के लिए, इस दीन को फैलाने के लिए जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सुपुर्द करके गए थे, हमने कितना किया? मेन ड्यूटी हमारी यही है ना,
इसी के लिए जो है वो हमें कहा भेजा गया है। कितना किया है हमने, अपनी जिंदगी में से कितने घंटे दिए हैं। हम इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने 18-18, 20-20 घंटे पढ़ते हैं। किसके लिए? दुनियावी कामयाबी के लिए। उखरवी कामयाबी के लिए कितना टाइम हम देते हैं, और फिर हम मदद मांगते हैं फिर अल्लाह से। तो अल्लाह तो तभी मदद करेगा ना जब तुम अल्लाह की मदद करोगे। हमसे तो नमाज पूरी नहीं होती जो 5 दफा हमें याद दहानी करवाने के लिए आती है कि तुम्हें, तुम्हारी तख्लीक का मकसद ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम उस अल्लाह की जो है वो पास चले जाओ। तुम जो बार बार रिफ्रेशिंग कोर्स होता है। बाज लोग कहते हैं ना कुरान में रिपीटेशन बहुत है, 700 से ज्यादा दफा कुरान में नमाज का हुक्म आया, कितना हमने पकड़ा उसमें से? दिन में 5 दफा नमाज हमें एक मकसद के लिए जो है वो जगाती है, हमारे सर पे हथौड़ा मारती है, कितना हम समझते हैं उससे। तो अगर हम मदद नहीं करेंगे तो अल्लाह भी हमारी मदद नहीं करेगा। और फिर हमारे ज़हन में हम ये कहते हैं देखें जी अल्लाह तो हमारी सुनता ही नहीं है। जब तुम अल्लाह के होगे तो अल्लाह तुम्हारी सुनेगा, तुम तो अल्लाह के हो ही नहीं। तुम तो जो है वो यहूदो हनूद के हो, तुम तो अपने नफ्स के गुलाम हो, तुम अल्लाह के नहीं हो। अगर तुम अल्लाह के होते तो अल्लाह तुम्हारी सुनता भी। जो अल्लाह के थे अल्लाह ने उनकी सुनी, उनको फतेह भी दी। 5-5 हजार के लश्कर ने जो है वो 2-2 लाख बंदे को शिकस्त भी दी, इसलिए कि वो अल्लाह के थे। और जब अब देख लीजिए हुनैन के मौके के ऊपर जब मुसलमानों की तादाद 12,000 या 14,000 थी, तो किसी उस वक्त सहाबा के ज़हन में ये बात आ गई आज हमें कोई नहीं हरा सकता। जाते ही आगे से जो फिर जो है वो हजीमत का सामना करना पड़ा। क्यों? भरोसा तकिया अल्लाह पे नहीं रहा, भरोसा अपने असबाब पे ऊपर आ गया, अपनी नफरी के ऊपर आ गया। अल्लाह ने फिर याद करवा दिया कि नहीं मैं हूं। तो मदद अल्लाह उसी की करेगा जो अल्लाह की मदद करेगा। हम इस लफ्ज को पल्ले बांध लें कि अल्लाह ने कह दिया अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम्हारे पांव डगमगाने नहीं देगा, तुम्हें गिरने नहीं देगा। लेकिन अगर हम अल्लाह को छोड़ के अल्लाह की नाफरमानियां भी करते रहें और सब कुछ करते रहें, और फिर हमें जो सबसे ज्यादा किसी चीज ने अगर खराब किया है ना, तो ये है कि जी अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। हाँ अल्लाह गफूर रहीम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अल्लाह के अहकामात की हुक्मदुली करता रहूं, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानियां करता रहूं, वो तमाम हराम खोरियां करता रहूं और फिर उम्मीद रखूं लोगों के नजायज हक खाता रहूं, मिलावट करता रहूं, खयानत करता रहूं, वादा खिलाफियां कम तोलता, बदर्जा उत्तम सारी बुराइयां का हामिल हूं मैं, और फिर कहूं कि अल्लाह माफ कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है। जब तक हम अपने अमाल ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम उसके कहे हुए पे नहीं चलेंगे, अल्लाह ऐसे नहीं सुनता है। अल्लाह कहता है पहले ठीक करके आओ मेरे पास। हदायत अल्लाह उसी को देता है जो हदायत चाहता है। जो अल्लाह सुब्हाना ताला की राह चाहता है अल्लाह उसको राह दिखाएगा, लेकिन पहले वो अल्लाह वाला बन के तो दिखाए। खुद हम सोच लें हम कहां खड़े हुए हैं, फिर हम अल्लाह से मदद मांग लें। अगर हम अल्लाह से मदद मांगने के काबिल हैं, अपने अमाल को ठीक कर लें। आसान तरीका मैं बारहा रिक्वेस्ट कर चुका हूं, बारहा अर्ज कर चुका हूं, सिर्फ अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दीजिए। सिर्फ अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दें, हमारी सारी राहें सीधी होती चली जाएंगी। हम हर चीज को जो है वो उस तराजू में रख के सोचना शुरू कर दें कि मेरे अल्लाह ने इसके बारे में क्या फरमाया है, मेरे रसूल का इसके बारे में क्या हुक्म है, क्या मैं वही करने जा रहा हूं जो मेरे अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है तो ठीक है, नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए उसको। यही जो है वो अल्लाह की मदद है। ये कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो फिर नविश्ता दीवार पे लिखा हुआ है हमारा अंजाम भी, हम खुद जो है उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला का पैगाम था कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाते हैं, युज़िल्लु अमालहुम फलन युज़िल्लु अमालहुम, उनके अमाल ज़ाया नहीं करता अल्लाह, जन्नतों का बासी उनको बना देता है। सयहदीहिम, उनको अनकरीब वो रास्ता दिखा देगा, राह दिखा देगा, जन्नतों की राह दिखा देगा, उस दिन की घबराहट से महफूज कर देगा। कहा जाता है कि जो शहीद होता है अल्लाह सुब्हाना ताला बेहिसाब, सिर्फ उसके कर्ज के बारे में कहा गया, बाकी सारे गुनाह उसके माफ, और फिर उसकी सिफारिश के ऊपर 70 अशखास उसके जो है उसके साथ जो बेहिसाब जाएंगे। अलकरीब अल्लाह उनको फिर हरा वाली हदवयुस्ले बालहुम, जब बाल होता है तो बाल का मतलब होता है एक ज़ाहरी हालत होता है, एक बातनी हालत होता है, एक दुनियावी हालत होता है, एक उखरवी हालत भी होता है, कि उनकी सारी हालतों को जो है वो ठीक कर देगा और उनको जन्नतों में दाखिल करेगा। उन जन्नतों में अर्रफ़हा लहुम, जिनको वो पहचान रखते होंगे, जिनको वो जानते होंगे। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और वो तुम्हारे पांव डोलने नहीं देगा, साबित कदम तुम्हारे पांव रखेगा। खुद फैसला कर लें, खुद अमल कर लें। देखिए बड़ी सीधी सीधी जो है वो चीजें हमारे सामने खुल के आ रही हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कुरान समझ कर पढ़ने और उस पर अमल करने की हिम्मत और तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين، جزاك اللہ۔